Hello students, I am Vikas sir from MS English Tutorial Navada Bihar. I welcome you all to our YouTube channel. My dear students, in this video we will discuss the first poem of CBSE class 9 from the Beehive book. The poem is The Road Not Taken. The Road Not Taken, composed by Robert Frost. My friends, in this video, first of all, we'll discuss about the poet, then about the poem, then explanation the poem with word meanings. Okay, so let's start. First of all, about the poem. Robert Frost was an American poet. He was born on 26 March 1874 and died on 29 January in 1963 at the age of 88. So my friends, actually Robert Frost was an American poet, means he belongs to America. He belonged to America. He was born on 26 March in 1874 and died on 29 January in 1963 at the age of 88. He was one of the most famous poets of America in the 20th century. Means you can say in the 20th century he was a famous poet. He was a famous poet of America, no doubt about that. Okay, his style was very impressive. Means his writing style was very impressive. Means everybody got impressed by his writing, you can say. Okay, he was known for his realistic depictions of rural life. Actually, friends, Robert Frost generally wrote about rural life. You can say village life. Village peasants, they may be village peasants and the condition of villages, you can say. Okay, he was awarded the 4 Pulitzer prizes. He was awarded the 4 Pulitzer prizes for poetry. Actually 4 is missing here, you can put 4. So he was awarded the 4 Pulitzer prizes for poetry. Clear? He was nominated for the Nobel Prize in Literature 31 times. It is the most important fact. He was nominated for the Nobel Prize in Literature 31 times. It's, I think it's a record in itself, So I think you are getting understand clearly, my friends. His some important works are The Road Not Taken, The Oven Bird, Out, Fire and Ice, Nothing Gold Can Stay, etc. 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 तो माय फ्रेंड्स, आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि जैसा कि मैंने क्लियर किया कि रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट थे जिनका जन्म 26 जनवरी 1974 और उनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 को हुई थी एट द एज ऑफ 88 वह जो है अमेरिका के एक फेमस पोएट थे। उनकी स्टाइल बहुत इंप्रेसिव हुआ करती थी, है ना। वो जनरली रूरल लाइफ के बारे में लिखा करते थे, ये फैक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। उन्हें 4 बार 4 पुलिट्जर प्राइजेस मिल चुके हैं और उनका 31 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट उनका नाम किया गया था। ठीक है, उनकी कुछ रचनाओं का नाम नीचे था, जैसे द रोड नॉट टेकन, द ओबन वर्ड, आउट, फायर एंड आइस, है ना, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अबाउट द पोएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द रोड नॉट टेकन इज अ फेमस पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। No doubt about that, it is a very famous poem of him. In this poem, the poet talks about his choices which he has to make between 2 roads in the jungle. Actually, friends, once upon a time, he was passing through a forest or going through a forest, but one place or one point, he had confusion because the road was diverged. You can say the road separated into 2 paths. I think you are getting understand. आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. Through this poem, the poet wants to convey an important message to us that our future depends on our present. No doubt about that. ये बिल्कुल सही बात है कि पोएम जो है वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं हमें कि हमारा फ्यूचर जो है वो हमारे प्रेजेंट पर डिपेंड करता है।
द कैरियर ऑप्शन वी चूज टूडे डिटरमाइंस व्हाट वी बिकम टुमारो। आज कैरियर ऑप्शन की बात करते हैं जो हम लोग चूज करते हैं और यही डिटरमाइन करता है कि कल हम लोग क्या बन सकेंगे। वी मस्ट बी केयरफुल, हमें बिल्कुल केयरफुल होनी चाहिए, बिकॉज वंस वी चूज वन ऑफ द टू ऑप्शंस वी कांट गो बैक ऑन द अदर लेफ्ट, है ना, ऑन द ऑप्शन लेफ्ट यू कैन से, कि अगर हम लोगों ने एक ऑप्शन को चुन लिया दो में से किसी एक को, तो हम जो छोड़ कर आए हैं उस पर वापस जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नहीं जा पाते। तो देखिए ये पोएम जो है हमारे लाइफ से रिलेटेड है, हमारे लाइफ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ये पोएम हम लोगों को सिखा देगी। तो आई थिंक, है ना, पोएम को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पोएम को। ध्यान दीजिएगा आप लोग, लाइन बाय लाइन विद वर्ड मीनिंग्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पोएट सेज in the first stanza, actually this poem has 4 stanzas and is 5 lines. The first stanza, my dear students, listen please. The roads two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the underground. Listen please. Diverged means separated. Diverged means separated. SEPARATED. Diverged means separated. Okay, and in a yellow wood. Yellow wood means, you can say yellow wood means jungle. Okay, तो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। वंस अपॉन ए टाइम, जैसा कि मैंने बताया कि एक बार की बात है कि पोएट जो है एक जंगल से होकर के गुजर रहे थे। अचानक उनको जंगल में वह रास्ता में जहां से वो जा रहे थे, उनको एक ऐसा पॉइंट मिला जहां से वो जो रोड है वो दो अलग अलग रोड में, है ना, सेपरेट हो चुका था। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ये पोएट है ना, और ये एक रोड से जा रहे हैं और आगे जाकर ये रोड क्या हो गया है, तो दो रोड में डाइवर्स्ड हो गया है। ठीक है, सेपरेटेड हो गया है। क्लियर? तो दो रोड वो क्या हो गए थे, सेपरेट हो गए थे एक जगह पे, है ना, दो रोड्स आ गए थे, डाइवर्स्ड हो गए थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो पोएट कहते हैं कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं दोनों पे नहीं ट्रैवल कर सकता था। यहाँ पे जो बोथ है ना, यहाँ पे बोथ का मतलब हो रहा है बोथ द पाथ्स, वो जो बोथ द रोड्स था, है ना, जो दो रोड्स डाइवर्स्ड हुए थे, दोनों रोड्स पे नहीं जा सकते थे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एंड बी वन ट्रैवलर बिकॉज ही वॉज ओनली वन, क्योंकि वो एक ही इंसान थे ना। अब मान लीजिए कि आप एक इंसान है ना, आप एक इंसान है, आप कहीं से जा रहे हैं, अचानक आपको दो रास्ते में यही रोड आपको बिखरा मिल जाता है। जैसे यही रोड जो है दो रास्ते में चला गया। ठीक है, दो रास्ते में अगर आपको तो ये रोड चला जाएगा तो आप क्या करेंगे, है ना, जैसे यही रोड इस तरीके से दो में आ जाए, तो या तो आप इस पे जाएंगे या तो आप इस पे आएंगे, लेकिन दोनों पे तो नहीं जा सकते ना, किसी एक पे ही आप जाएंगे, दोनों पे बिल्कुल नहीं जा सकते। उसी प्रकार से राइटर भी यहाँ पे दोनों पे नहीं जा सकते थे, तो दोनों पे राइटर नहीं जा सकते थे। ठीक है, क्योंकि वो केवल एक ही थे, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो लॉन्ग, है ना, वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, तो वहाँ पे वो क्या किया, राइटर जो है ना, ही स्टूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक वहाँ पे खड़े रह गए। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड। मतलब क्या, वो लंबे समय तक वहां पर खड़े रह गए और एक को, है ना, और वो क्या कर रहे थे, तो एक रोड को, ये जो डाउन वन, लुक्ड डाउन वन मीन्स वन रोड को वो क्या कर रहे थे, दो में से, जैसे मान लीजिए ये जो टू रोड्स जो था यहाँ से जो आए थे, है ना, जैसे एक रोड इधर गया था और जो इधर आया था, तो उसमें से एक रोड, मान लीजिए ये वाला आपका रोड 1 हो गया, ये वाला आपका रोड 2 हो गया। यहाँ पे पोएट है, तो ये 1 रोड को जितना दूर तक वो देख सकते थे ना, वो देख रहे थे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। जितना वो देख सकते थे, जितने वो कैपेबल थे, उतना दूर तक वो क्या कर रहे थे, देख रहे थे, है ना। और इसलिए आगे लिखा है टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड, मतलब वो जहां तक वो, जैसे देखते हैं कभी हम लोग दूर में देखते हैं, आप लोग नजर दौड़ाइए अगर दूर में, तो ऐसा लगेगा कि एक जगह आया है जहां पे आसमान में सट रहा है।
ठीक है। तो जहां पे जंगल झाड़ी तक, मतलब जहां तक उनको रोड दिख रहा था, एक्चुअली यहाँ पे अंडरग्राउंड का मीनिंग जो होता है ना, वो होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। आप कह सकते हो एक प्रकार का छोटा सा जंगल, झाड़ी, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा आई थिंक फर्स्ट स्टैंजा। तो ये तो बात थी पोएम की। अब मैं बात करता हूं, देखिए इसी स्टैंजा को मैं आपको अपने लाइफ से रिलेट कर देता हूं। मैं अपने लाइफ से इस पोएम को रिलेट कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा, इसको गौर से सुनिएगा माय फ्रेंड्स। तो हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं और उसमें से मुझे किसी एक को चूज करना होता है। जैसे फ्रेंड्स अभी देखिए कि हमारे देश में है ना लॉकडाउन जारी है। अब इसमें भी देखिए हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, हमारी क्लासें बंद हैं, स्कूल्स बंद है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस क्या है कि हम लोग तो घर पे रह रहे हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस ये है, मान लीजिए कि हम पढ़ाई करें या फिर पढ़ाई ना करें, है ना। अब एक चीज गौर करिए कि अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है ना, आपने पढ़ाई नहीं करने का ऑप्शन चूज किया, तो क्या लगता है फ्रेंड्स कि जो पढ़ाई करनी चाहिए थी, क्या आप उसे दोबारा पढ़ पाओगे? जो आपने 2 मंथ्स को खो दिया है, क्या उसे आप पा पाओगे? तो आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आपको एक ही करनी चाहिए। अब उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, है ना, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आप दोनों, मान लीजिए 2 ऑप्शंस है, तो आप कोई एक ही काम एक बार में करोगे। सीधी सी बात है कि आपके हाथ में अगर दोनों हाथ में एक एक लड्डू है फ्रेंड्स, तो आप कोई एक ही लड्डू पहले खाएंगे, दोनों एक ही बार में नहीं खा सकते, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए तो राइटर आगे क्या कहते हैं, सेकेंड स्टैंजा प्लीज। तो सेकेंड स्टैंजा की बात करूं तो राइटर कहते हैं कि दे टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब पहले तो उन्होंने वहां पे वन रोड को क्या किया, गौर से देखा, उसके बाद जो है अब वो क्या किए, दूसरे रोड को ले लिए। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो 2 रोड्स यहाँ पे जा रहे थे, ये जो 2 रोड्स जो डाइवर्ज हुए थे यहाँ पर से, सॉरी, है ना, कि ये जो 2 रोड्स यहाँ से डाइवर्ज जो हुए थे, है ना, यहाँ पे आके जो 2 रोड्स डाइवर्ज हुए थे, एक इधर गया था, एक इधर आ गया था, है ना। तो ये जो 2 रोड्स में, तो एक को तो उन्होंने लंबे दूर तक देखा और दूसरे को उन्होंने क्या किया, चूज कर लिया। रीजन जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो भी इसी के जैसा था, इसी के जैसा सा, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। मतलब कि ये रोड भी जो था ना, वो इसी के पहले रोड की ही तरह था, इसलिए उन्होंने सेकेंड को ही चूज किया, इसको चूज नहीं किए। क्लियर। राइटर आगे कहते हैं एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लैम, परहैप्स द बेटर क्लेम। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली उन्हें यह लग रहा था कि शायद ये बेटर क्लेम हो सकता है। यहाँ पे क्लेम का मीनिंग आएगा ऑप्शन, है ना, कि इनका जो चॉइस है, या फिर आप चॉइस कर सकते हो, ये बेटर चॉइस है, ठीक है। तो बेटर चॉइस मतलब उन्होंने सही चुना है, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर, क्योंकि जिस रोड को उन्होंने चूज किया था ना, वो क्या था, ग्रासी था। अब ग्रासी का मतलब क्या होता है, ग्रासी का मतलब उसमें बहुत लंबे लंबे घास हो सकते हैं, है ना। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट मीनिंग निकलती है इन दिस पोएम कि ग्रासी का मीनिंग यहाँ पे अनयूज्ड भी हो जाएगा। मतलब ग्रासी था तो उसका यूज किया हुआ नहीं था। एंड वांटेड बियर, वांटेड बियर वही मीनिंग आ गया, एंड अनयूज्ड इसे भी आप कह सकते हो। वो ग्रासी था एंड वांटेड बियर था, मतलब वो अनयूज था, उस पर यूज नहीं किया हुआ था, मतलब लोग उस पर अभी नहीं गए थे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये जो 2 रोड थे माय फ्रेंड्स, उसमें से उन्होंने इस रोड पे चलना शुरू उन्होंने कर चुका था, ठीक है। कुछ दूर जाने के बाद, तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, मतलब इस रोड में जब उन्होंने कुछ दूर गया, तब देखिए क्या होता है यहाँ पे कि जब उन्होंने कुछ दूर गया तो हैड वांट देम रियली अबाउट द सेम। और जब उन्होंने इस रोड में कुछ दूर तक आया है, तो क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रोड था ना, उसी की तरह यहाँ पर भी है। मतलब स्टार्टिंग में जब वो जा रहे थे रोड में, जब स्टार्टिंग उन्होंने रोड पे चलना स्टार्ट किया, तो वो क्या था कि ग्रासी था, ठीक है, स्टार्टिंग में ग्रासी था। बट आगे जब उन्होंने बढ़ा तो देखा कि सेम टाइप्स है, कोई डिफरेंसेस नहीं थे। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा पोएम, ठीक है। अब हम बात करूंगा थर्ड स्टैंजा की। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। एक्चुअली क्या है ना कि उस दिन जो सुबह में जब वो राइटर जा रहे थे, तो एक्चुअली दोनों इक्वली, है ना, सिमिलरली, मतलब एक ही प्रकार का था, है ना। इन नो लीव्स स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक,
कहने का मतलब है कि उसमें जो पत्तियां थी वो बिल्कुल ब्लॉक नहीं होते। ट्रोडन का मतलब होता है, आप कह सकते हो कुचला जाना, या फिर उसे वॉक ओवर, ऐसे इसका मीनिंग होता है। वॉक ओवर, WALK, वॉक ओवर मतलब उस पर चलना। ठीक है, तो मतलब पतियों पे कोई लोग चला नहीं था। आप कह सकते हो कि बोथ द रोड्स वर नॉट यूज्ड, उसे यूज नहीं किया गया था। ठीक है, तो राइटर कहते हैं ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ओह, तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट को जो है अनदर डे के लिए छोड़ दिया। मतलब क्या हुआ ना कि देखिए, जो 2 रोड था, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उन्होंने सेकंड को चूज किया, तो फर्स्ट को छोड़ दिया कि चलो भाई फर्स्ट पे मैं किसी दिन और दिन चल लूंगा। ठीक है ना। चलिए, इट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि है ना कि ये रास्ता जो है हमें कहां तक लीड करेगा। आई डाउट इफ आई शुड इवर कम बैक, हालांकि मुझे डाउट था कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा माय फ्रेंड, ये भी हमारे लाइफ से बहुत ही बेहतरीन चीज है। मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, है ना, तो 2 ऑप्शंस है, तो आपने अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन को चुना या फिर सेकंड ऑप्शन को चूज किया, तो जिस ऑप्शन को आप चूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आपने इसको चूज कर लिया तो आप इसी में अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। और जब वर्क करना स्टार्ट कर देते हो तो फिर बहुत सारे ऑप्शन आगे भी मिलने शुरू हो जाते हैं, है ना। आगे तो अगर मान लीजिए अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आपको एक पल के लिए लगता है काश मैं वो ऑप्शन चूजता, फिर सोचते हैं कि चलो यार इसमें इतना कर लिए, चलो इसी में और रेगुलर रह जाता हूं, है ना। तो ये सब चीजें होती है ना। डाउट रहता है क्या मैं कभी उस पर जा पाऊंगा, क्या वो कैसा रहेगा, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं माय फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूं लास्ट स्टैंजा की। तो राइटर कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। ध्यान दीजिएगा, साई का मतलब यहां पर आप कह सकते हो, साई का मीनिंग होता है डीप ब्रेथ, ब्रेथ BREATH, ब्रेथ, है ना। मतलब कहते हैं आई शैल बी टेलिंग। देखिए यहां पर फ्रेंड्स ये शैल बी का यूज इन्होंने किया है। हालांकि इसके पहले हमेशा क्या था कि कभी भी शैल बी मतलब फ्यूचर का यूज नहीं, बल्कि किसका, पास्ट का यूज किया था। ठीक है, लेकिन अब यहां पर उन्होंने फ्यूचर का यूज किया। इसका मतलब है कि कुछ आगे इंफॉर्मेशन है। देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेज हेंस। देखिए यहां पर समवेयर एजेज, समवेयर का मतलब तो कहीं हो गया, लेकिन एजेस एंड एजेज का मतलब यहां पर होगा इन द फ्यूचर, भविष्य में, इन द फ्यूचर, भविष्य में, फ्यूचर। ये आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से, है ना, कि ये जो एजेज हैं इनका मतलब क्या हो रहा है, तो इन द फ्यूचर, फ्यूचर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्यूचर में कभी वो ये कहते रहेंगे, गहरी सांस से कहते रहेंगे, क्या कहते रहेंगे कि 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। ठीक है, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। देखिए वहां पर वो कहते क्या है फ्रेंड्स, कि देखिए वो सोच रहे होते हैं मन में ही कि एक समय आएगा जब मैं, मतलब कि जब मैं ओल्ड हो जाऊंगा, या फिर मतलब फ्यूचर में कभी भी कहीं भी मैं ये कहता रहूंगा कि एक समय था, वंस अपॉन अ टाइम, है ना, वंस अपॉन अ टाइम, है ना, आई वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, है ना, वेयर 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन दैट फॉरेस्ट, है ना, आई टुक द वन दैट वर लेस ट्रेवल और दैट वर नॉट यूज्ड, दैट वाज नॉट यूज्ड, यू कैन से, है ना। तो इस तरीके से मतलब वो कहानी सुनाएंगे किसी को। ठीक है, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और वही जो है सभी डिफरेंसेस को क्लियर किया, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर से एक क्लियर सा ये होता है कि मान लीजिए कि जब हमारे जीवन में भी 2 ऑप्शंस होते हैं, है ना, मान लीजिए हमारे जीवन में भी 2 ऑप्शंस होते हैं और हमने किसी एक ऑप्शंस को चूज किया, तो हम उसी के दम पे, जो देखिए एक क्लियर है ना, मैंने अबाउट द पोएम में पहले ही क्लियर किया था कि आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर प्रेजेंट। यहाँ पे मैंने क्लियर किया था आपको, है ना, कि ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है इस चैप्टर में, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है राइटर का। ठीक है, कि हमारा जो फ्यूचर डिपेंड्स करता है किस पे, हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, नो डाउट अबाउट दैट। कि आज जो हम लोग चूज करते हैं ना, इसी से हमें ये क्लियर होता है कि मैं फ्यूचर में क्या बन पाऊंगा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से पोएम समझ में आ गया होगा, है ना, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो माय फ्रेंड्स, मेक योर चॉइस, है ना, यू कैन से, है ना, कि आप अपने चॉइस को जो है राइट चॉइस में चेंज करिए, एक राइट चॉइस को लीजिए, है ना, जो आपकी जीवन को सफलता तक पहुंचाए,
है ना। तो मे यू गॉड, है ना, may you get success at every step of your life, and I pray for you all the students and get success in their life. Thank you, all the very best. One important thing, my friends, if you like my video, press the like button and share and subscribe my channel. Good luck. Thank you.